हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे components of food. Ready, steady, start. 5 types of nutrients from the food we eat are written below. Below each nutrient, write any 3 sources, food items from which we obtain it and one disease which is caused due to lack of it. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: components of food, balanced diet, right cooking, deficiency diseases, malnutrition, undernutrition and obesity. आज हम ये सब पढ़ेंगे. We need a diet that contains a variety of food items made from grains, vegetables, fruits, pulses, milk, fish, meat, egg and other. This is because our body needs different types of food for different purposes. We know that every food item, dish is made from different ingredients. The food that we eat consists of different components like nutrients. In other words, nutrients are the chemical substances present in food which provide energy and minerals needed by the body for proper growth and development. See, हमें एक प्रॉपर डाइट चाहिए होती है जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क, एग्स, फिश, एवरीथिंग जो भी आप खाते हैं. अब ये जो डाइट होती है ये हम क्यों लेते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. इससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फूड: देयर इज नो सिंगल perfect food that supplies the requirement of proper nutrients all by itself. Food can be classified according to their actions in the body, such as energy giving foods, body building foods, protective foods. See, कोई भी एक ऐसा फूड नहीं है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए. एक लौता कोई फूड ऐसा नहीं होता जिससे हमें ये सारी चीज़ें मिल जाए. इसीलिए हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं. अब ये जो फूड्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज्ड है, जैसे कि एनर्जी गिविंग हो गए, बॉडी बिल्डिंग हो गए या फिर प्रोटेक्टिव हो गए. The nutrients present in the food can be divided into 5 groups: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Fibers and water also play an important role in the body. Roughage of water are also important part of our diet. Even though they do not contain any nutrients, they play an important role in the digestion and proper functioning of the body. See, जो 5 मेन ग्रुप्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब इन सब के साथ साथ हमें पानी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीना. पानी वैसे तो कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करता, बट हमारे शरीर के लिए वो उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी खाना है. वो इसलिए क्योंकि पानी हेल्प करता है हमारा फूड डाइजेशन में. Carbohydrates. Carbohydrates are a source of energy for the body. There are 2 types of carbohydrates, sugar and starch. Sugar is a simple carbohydrate, whereas starch is a complex carbohydrate. Our digestive system breaks down starch and sugar into simplest form of sugar known as glucose. Glucose is absorbed in the bloodstream and provides us instant energy. As sugar provides instant energy to the body, patients and sports persons are given glucose, which is simplified sugar, when they feel exhausted and weak. See, कार्बोहाइड्रेट एक सोर्स है एनर्जी का. कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके से होता है, जैसे कि 2 टाइप्स का होता है, शुगर एंड स्टार्च. शुगर एंड स्टार्च हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इससे हमारी बॉडी अगर वीक फील कर रही है तो हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी अगर हम स्टार्च या फिर शुगर कंटेन करते हैं. अब जो शुगर और स्टार्च होता है इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला जाए तो हम ग्लूकोज भी कहते हैं. इसलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या पेशेंट्स होते हैं, अगर वो वीक फील कर रहे होते हैं तो उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है. अब फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से फूड्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कि शुगर या फिर स्टार्च? फ्रूट्स हो गया, हनी हो गया, पोटैटोज एंड राइस. सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड पोटैटो, ब्रेड, rice, wheat, table sugar, milk, jaggery and fruits like mango, banana and papaya. Though
Processed foods like jams, jellies, pizzas, burgers, candies, and chocolates are also rich in carbohydrates, but they are harmful for our health. Carbohydrates are made of simple components carbon, hydrogen, and oxygen. See, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें कौन से खाने में मिलता है? ब्रेड, राइस, व्हीट, मिल्क, जैगरी या फ्रूट्स. फ्रूट्स कौन से? मैंगो, बनाना एंड पपाया. बाकी जैसे फूड्स हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि जेलीज, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चॉकलेट्स. लेकिन ये वाले जो फूड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. कार्बोहाइड्रेट के जो सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लैब एक्टिविटी 1. Objective: to test the presence of simple sugars like glucose in the food. Materials required: food sample, distilled water, Benedict solution, test tube and burner. Procedure: make a solution by mixing a small amount of food sample with distilled water. Take 5 ml of the solution in a test tube and add 10 drops of Benedict solution to it. Heat the test tube for about 40 seconds. Observation: the color of the solution changes and blue color of Benedict solution to green, orange or brick red. The change in color depends on the concentration of glucose in the sample. Precaution: do this activity in the presence of teacher only. Inference: sugar is present in the given food sample. ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे. Lab activity 2. Objective: to test the presence of starch in a food sample. Materials required: food sample, slice of bread or potato, cooking oil, 2 small bowls and iodine solution. Procedure: take a food sample like a slice of bread or potato in a bowl. Add 2-3 drops of dilute iodine solution to the food item. Observation: the food sample turns blue-black in color. Inference: the development of blue-black color indicates the presence of starch in the food sample. ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे. Fats. Fats are also energy giving foods, but they give us more energy than carbohydrates. The excessive carbohydrates consumed by us are stored in the body as fats. Okay. जो फैट्स होते हैं, फैट्स हमें एनर्जी देते हैं. जो भी फूड, जिन फूड्स में फैट होता है वो हमें एनर्जी देते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट से कम देते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं. फैट्स एक तरीके से ऐसी फूड आइटम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं एक जगह पे. Our body takes longer to break down fats than carbohydrates. Extra fat is stored under the skin and around the heart and kidneys. Excessive intakes of fats causes excess body weight and heart diseases. देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जितनी एनर्जी हमें देते हैं उतनी एनर्जी हमें फैट्स भी देते हैं, लेकिन हार्मफुल हमारे लिए फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते. फैट्स की वजह से हमें डिजीजेस भी हो जाती है. हमारी स्किन के अंडर फैट जो है वो इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है गेन होता है और बॉडी जो है फूल जाती है. सो वी शुड अवॉइड ईटिंग एक्सेस ऑफ फूड आइटम्स कंटेनिंग फैट्स. सम important sources of fats are butter, ghee, cheese, meat, vegetable oils like coconut oil and groundnut oil, and dry fruits like cashew nut and almond. इसीलिए हमें जितने भी फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें फैट होता है वो हमें इग्नोर करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए. ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं? वो होते हैं बटर, घी, चीज़, वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर आपका ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, कैश्यू या आलमंड. ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा फैट होता है. फैट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड फैट्स आर obtained from animals and are generally solid at room temperature like butter and ghee, whereas unsaturated fats are obtained from plants and are liquid at room temperature like olive oil and canola oil. See, 2 टाइप्स के जो फैट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड. जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं और रूम टेम्परेचर पे वो
सॉलिड हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से फैट्स होते हैं? वो हो जाएगा बटर एंड घी। वहीं अनसेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में। वो कौन से होते हैं? ऑलिव ऑयल एंड कैनोला ऑयल। लैब एक्टिविटी 3, ऑब्जेक्टिव्स। To test the presence of fat in a food sample, materials required: butter or oil. Food sample: a sheet of white paper and a source of light. Procedure: take a small amount of butter or oil and rub it on a sheet of white paper. Allow the sheet to dry for some time. Now observe the sheet in front of the source of light. Observation: the sheet on which butter oil was rubbed shown an oily spot which is translucent in nature. Inference: this proves the butter oil has fat. ये आप खुद से करेंगे। Proteins. Proteins have a variety of function in our body. They are required by the body for growth and repair of body tissues, to regulate body functions and to protect the body from infections. Hence, food items rich in proteins are also called body building foods. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन से हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है। प्रोटीन्स से हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वो मूवमेंट करते हैं, उनमें फंक्शन होती है। किसी भी इन्फेक्शन से या डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटीन्स। तो इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं, जिन फूड में प्रोटीन होता है। अ ग्रोइंग चाइल्ड लाइक यू, a pregnant woman and a person recovering from a disease would require proteins in large quantities. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रोटीन को छोटे छोटे चीज़ों में बांट देता है और उसको हम लोग अमीनो एसिड्स बोलते हैं। Some important sources of proteins are milk, cheese, curd, eggs, seafood, kidney beans, सोयाबीन, पिस्ताचियो, चिकन etc. ये सारे फूड्स जितने भी हैं ये सब में प्रोटीन होता है। Lab activity 4, objective: to test the presence of protein in a food sample. Materials required: food sample, 1 milliliter of milk or raw egg albumin, copper sulfate solution, sodium hydroxide solution, distilled water and a test tube. Procedure: take 1 milliliter of milk or egg albumin white in the test tube, add 5-10 drops of water to it and shake well. Add 2-3 drops of copper sulfate solution followed by 10-12 drops of sodium hydroxide solution to the test tube. Observation: the color of the solution changes to purple or violet. Inference: it proves the milk of raw egg white is rich in protein. ये आप खुद से करेंगे। Vitamins. Vitamins are very essential for the proper functioning of our body. They are required in very small quantities in comparison to carbohydrates, fats or proteins. They are known as protective foods because they protect our body from disease and help in keeping our bones, teeth, gums and eyes healthy. Various sources of vitamins are green leafy vegetables, milk, fruits, eggs, fish एंड होल ग्रीन सीरियल्स। वाइटामिन्स हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उतना ज़्यादा तो वाइटामिन्स नहीं चाहिए होते, बट चाहिए होते हैं इन अ स्मॉल अमाउंट। इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। ये हमारी बोन्स, गम्स, टीथ्स इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फूड जो वाइटामिन्स हमें देते हैं वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, एग्स, fish and cereals. Information literacy. Strawberries and kiwis contain almost twice as much as vitamin C as oranges have. देखो, oranges में जितना vitamin C होता है उतना ही vitamin C kiwis और strawberries में मिला के होता है। There are several kind of vitamins like vitamin A, vitamin B, complex, a group of vitamin like vitamin B1, B2, B3, etc. Vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. Each of these vitamins play a specific role in a body. They are classified on the basis of their solubility in water or fats as water soluble vitamins or fat soluble vitamins.
The important vitamins, their sources, their functions in our body, deficiency diseases and symptoms are given in the table below. See, विटामिन ए होता है, बी होता है, देन इनके भी पार्ट्स होते हैं, B1, B2, B3, जितने भी ये विटामिन्स होते हैं ये सब अलग अलग रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. अब यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया हुआ है जो कि हमें इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में बताता है और वो किस तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं उसके बारे में बताता है. विटामिन ए सोर्सेज: कैरेट्स, टमाटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, येलो फ्रूट्स, मैंगो, milk, butter and cold liver oil. Functions: keeps the eyes and skin healthy. Deficiency diseases: night blindness. Symptoms: loss of vision in the dark. Okay, विटामिन ए हमें कौन कौन से फ्रूट्स देते हैं? कैरेट्स, टमाटोज, ये सारे देते हैं. देन इनके फंक्शन होते हैं, हमारी स्किन और हमारी आइज़ को हेल्दी रखते हैं. अगर ये ना मिले तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. इसके सिम्टम्स होते हैं आँखों की रोशनी जाना. विटामिन B1 cereals, peas, potatoes, yeast, meat and milk. Helps in functions, helps in energy release, deficiency diseases, beriberi. Symptoms: very little energy to work, weak muscles. विटामिन B1 जो है वो हमें कौन से फूड से मिलता है? सीरियल्स, पीस, पोटैटोज से मिलता है. इनके फंक्शंस होते हैं हमारी एनर्जी रिलीज करते हैं. इसकी डेफिशिएंसी बेरी बेरी हो सकता है हमें. वो क्या होता है? जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है हमारी वो बहुत कम एनर्जी रहती है, हमारी मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं. विटामिन B12 सोर्सेज: मीट, लिवर, यीस्ट, फिश एंड मिल्क. फंक्शंस: फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. डेफिशिएंसी डिजीजेस: एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड. ओके, विटामिन B12 जो है वो हमें मिलता है मीट, लिवर, फिश या फिर मिल्क से. ये हमारे रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन करता है. इससे डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है, एनीमिया, और इसके सिम्टम्स होते हैं हेमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो कम होते जाते हैं. नाउ विटामिन C सिट्रस फ्रूट्स: लेमन, ऑरेंज, टमाटोज एंड स्प्राउट्स. फंक्शंस: keeps teeth, gums and bones healthy. Deficiency diseases: scurvy. Symptoms: swelling and bleeding of gums, swelling of joints. इसकी डिजीज़ है स्कर्वी और इसके सिम्टम्स हैं हमारे गम्स जो हैं वो स्वेल करने लगते हैं या फिर जॉइंट्स जो हैं वो भी स्वेल करने लगते हैं. विटामिन D सोर्सेज: सनलाइट, मिल्क, फिश एंड एग्स. फंक्शंस: फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ्स. Deficiency diseases: rickets. Symptoms: decaying teeth, bow legs and development of pigeon chest conditions. विटामिन D है जो हमें मिलता है सनलाइट, मिल्क, फिश या फिर एग से. ये हमारी बोन्स, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. इससे हमें अगर ये ना मिले तो बीमारी हो सकती है रिकेट्स और इसके सिम्टम्स होते हैं वीक बोन्स. विटामिन K सोर्सेस: स्पिनच, कैबेज, एग्स एंड लिवर. फंक्शंस: helps in blood clotting. Deficiency diseases: affects clotting of blood. Symptoms: bleeding from gums. विटामिन K हमें मिलता है स्पिनच, कैबेज, एग्स या फिर लिवर से. इसके फंक्शंस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग. डेफिशिएंसी डिजीज़ है इसकी क्लोटिंग, हमारी जो ब्लड क्लोटिंग है उसको ये अफेक्ट करता है. और इसके सिम्टम्स होते हैं हमारे जो गम्स है, टीथ के आसपास जो गम्स होते हैं वो ब्लीड करने लगते हैं. Lab activity 5. Fruits and vegetables are good for our health. Make a list of all the fruits and vegetables you usually eat. Over the next 7 days, eat one of them and tick in the list. Observe the list and make a chart to show which fruit and vegetable you eat the most. Write what nutrients these fruits and vegetables have. ये आप खुद से करेंगे. Minerals. Minerals are the elements which are needed by our body for different functions. Minerals help in development of bones and teeth, formation of blood cells and for the functioning of our muscles. They help the nervous system pass message to different body parts. जिस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं छोटी मात्रा में, वैसे ही मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फॉस्फोरस, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये हमें मिलते हैं मिल्क, एग्स,
ब्रोकली, एप्पल, फिशेस, सोल्ट, बनाना, पल्सेस से। The minerals, sources, their functions, deficiency, diseases and symptoms are given in the table below. Minerals: calcium. Sources: milk, cheese and green vegetables. Functions: healthy bone and teeth formation, help in blood clotting. Deficiency diseases: bones and tooth decay, rickets in children. Symptoms: brittle bones, tooth decay, excessive bleeding. कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल से। इसके फंक्शंस होते हैं हमारे बोन को या टीथ को ये हेल्दी करता है। इसकी डिजीज़ होती है बोन्स, टीथ से रिलेटेड होती है। सिम्टम्स इसके होते हैं ब्रिटल बोन्स, टूथ डिके। मिनरल्स: सोडियम एंड पोटेशियम। सोर्सेस: salt and most foods. Functions: helps in maintaining body's water balance, helps in blood clotting. Deficiency diseases: body and muscle weakness and paralysis. Symptoms: general weakness, dehydration. सोडियम एंड पोटेशियम ये हमें मिलते हैं सोल्ट और बहुत सारे खाने से। इसके फंक्शंस होते हैं, ये हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस बना के रखता है। हमारी जो इसकी डिजीज़ होती है जैसे कि पैरालिसिस हो जाती है, हमारी मसल्स या बॉडी वीक होने लगती है। एंड इसके सिम्टम्स होते हैं डिहाइड्रेशन या फिर जनरली आपको बॉडी में वीकनेस आने लगती है। मिनरल: फॉस्फोरस। सोर्सेस: ब्रेड, चीज़, पोटैटो, मिल्क, एग्स एंड मीट. फंक्शंस: बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, डेफिशिएंसी डिजीजेस, रिकेट्स इन चिल्ड्रन. सिम्टम्स: वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, बॉडी वीकनेस. फॉस्फोरस जो है वो हमें मिलता है चीज़, ब्रेड, पोटैटोज, मिल्क, एग से। इसके फंक्शंस होते हैं हमारी बोन और टीथ के फॉर्मेशन के। इससे डिजीज़ हो सकती है रिकेट्स जो नॉर्मली चिल्ड्रन में पाई जाती है, और इसके सिम्टम्स जो है वो बॉडी वीकनेस या फिर बोन्स या फिर टीथ की वीकनेस आती है। मिनरल्स: आयरन। सोर्सेस: सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, एग्स एंड लिवर. फंक्शंस: formation of red pigment of blood, hemoglobin. Deficiency diseases: anemia. Symptoms: pale body color, whitish nails, body weakness. आयरन हमें मिलता है सीरियल, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। इसके फंक्शंस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। इसकी डिजीज़ है एनीमिया और इसके सिम्टम्स है वाइटिश नेल्स, आपका जो बॉडी कलर है वो पेल हो जाता है या फिर बॉडी वीकनेस होती है। मिनरल्स: आयोडीन. Sources: seafood and iodized salt. Functions: thyroid gland functions. Deficiency diseases: goiter. Symptoms: enlargement of thyroid gland in the neck, mental retardation in children. आयोडीन हमें मिलता है सी फूड से और इसके फंक्शंस होते हैं थायराइड ग्लैंड फंक्शन। इसकी डिजीज़ है गोइटर एंड सिम्टम्स है इसके जो आपका थ्रोट एरिया है वो कहीं ना कहीं फूल जाता है, थायराइड हो जाता है। मिनरल्स: फ्लोरीन. सोर्सेस: सी फूड एंड टी. फंक्शंस: मेक्स टीथ स्ट्रोंगर. डेफिशिएंसी डिजीजेस: डेंटल डिके. सिम्टम्स: इंक्रीज्ड टूथ डिके. ओके, फ्लोरीन हमें मिलता है सी फूड से या टी से। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। इसकी जो डिजीज़ है वो है डेंटल डिके एंड इसके सिम्टम्स होते हैं आपके जो टूथ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्द होता है और टीथ खराब होने लगते हैं। डाइटरी फाइबर, रफेज. डाइटरी फाइबर और रफेज डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू. रफेज इज दैट portion of our food which cannot be digested in our body. Dietary fiber is also a type of carbohydrate called cellulose, yet it is needed by the body as it performs the following functions. C. डाइटरी फाइबर जो होता है उसे हम रफेज भी बोलते हैं। इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। ये वो पोर्शन होता है फूड का हमारे शरीर में जो कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इसको हम सेल्यूलोस भी बोलते हैं। इसके कुछ फंक्शंस है जैसे कि फाइबर असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. इट हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट. सी. जितनी भी हमारी डाइजेशन सिस्टम है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। हमारी अनडाइजेस्टेड फूड से हमें रिड करने में हेल्प करता है। मेन सोर्सेज ऑफ फाइबर आर वेजिटेबल्स, कैरेट, कैबेज, fruits, apple, peaches, whole grains, wheat, rice and pulses, beans.
ओके। जिनमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या फिर ग्रेन्स, वो है कैरेट, कैबेज, wheat, rice, apple, peaches. Water. Almost all the body food items that we eat have water. Water is one of the most basic needs for survival of human beings. About 60% of body is water. Water performs the following functions. It helps to absorb nutrients from food. It helps to maintain a constant body temperature. It helps to eliminate waste such as urine and sweat from the body. It helps to move substances within the body. See, वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो 60% बॉडी है वो वाटर से ही बनी है। हम कोई भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल खा रहे हैं उसमें भी वाटर कंटेन होता है। वाटर के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स, जिन फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करता है पानी। हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, और जितना भी वेस्ट या स्वेट है हमारी बॉडी में, वेस्ट यूरिन है, उन सबको रिमूव करता है। वाटर, मिल्क, जूस, टी, ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड हैव हाई वाटर कंटेंट। कुक्ड फूड, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, इन सब में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। Visual literacy. Food labels provide important information about the nutritional content of packaged food. They list the serving size, calories, and amount of various nutrients present in the food. Reading food labels can also help make informed choices about the food we consume and promote healthier eating foods. जितने भी फूड लेबल्स होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए गए हैं। जो भी हम बाहर से खाना खरीद के लाते हैं उनमें बाहर जो पैकेजिंग होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखा हुआ रहता है, प्लस हमें पता चलता रहता है कि क्या क्या मिनरल्स हम खा रहे हैं या फिर क्या क्या वो फूड हेल्दी है या नहीं है। बैलेंस डाइट. The food that we consume regularly is called a diet. A diet must contain sufficient quantities of different nutrients for proper growth and maintenance of good health. No single food item supplies all the essential nutrients in the amounts we need. Okay. बैलेंस डाइट एक तरीके से जो आप डेली रूटीन में खाना खा रहे हो सुबह शाम दोपहर का, ये सब आपका बैलेंस डाइट ही है। इसे बैलेंस एक प्रॉपर डाइट कहा जाता है। हम प्रॉपर डाइट में अपनी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। Therefore, different food items are to be combined to get a proper and balanced nutrition. A diet containing all the nutrition in adequate quantities is known as a balanced diet. वो डाइट जिसमें हमें सब कुछ मिलता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है, उसे हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट कहते हैं। Thus, it provides the body with all the essential nutrients and energy required by the body for its growth and maintenance. Lack of deficiency of one or the other nutrients in food leads to poor health. Okay. अगर हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो उसकी वजह से हमारी जो मेंटेनेंस है, बॉडी की जो मेंटेनेंस है वो ख़राब होती जाती है। हमारी बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। तो हमारी हेल्थ के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। अ प्रॉपर बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट वेरीज विद एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज. ओके, एक जो बैलेंस डाइट है वो आपकी एज या फिर आपका जेंडर या फिर आप क्या काम करते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है. Children need to eat more protein-rich food as growth during early childhood in rapid. Laborers doing hard work need more of carbohydrates and fats as they need more energy. छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें प्रॉपर डाइट चाहिए होती है, क्योंकि छोटे से जब वो खाना शुरू करते हैं तो वो खाना तभी उनको जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो लगता है. जो लेबर्स होते हैं, जो काम करते हैं सारा दिन, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. Pregnant women also need more protein. Extra protein is required by the baby growing inside the womb. Okay. एक प्रेग्नेंट विमेन, जो औरत माँ बनने वाली है, उसके लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा होता है उसे प्रोटीन से ही फूड मिलता है. A balanced diet should consist of food items obtained from different sources so that we do not have to eat much
बट स्टिल आवर बॉडी गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। एक बैलेंस डाइट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हमें बहुत सारा खाना ना खाना पड़े, हमें कुछ अमाउंट का खाना ऐसा खाना पड़े जिसमें हमें हर तरीके के डाइट्स मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। A balanced diet requires adequate amount of vegetables, pulses, cereal, milk, dairy products, meat, eggs, fruits, nuts, honey, green leafy vegetables, etc. Okay, एक balanced diet में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। Vegetables, fruits, pulses, milk, dairy products, meat, eggs, fruits, nuts, ये सारी चीज़ें। Food pyramid. It is the representation of what type of food and the quantity that should be consumed daily to keep healthy. The adjoining figure shows the food pyramids for vegetables and non-vegetables, vegetarians. The adjoining. Action. The adjoining figure shows the food pyramids for vegetarians and non-vegetarians. Okay, फूड पिरामिड ये आप साइड में देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर बैलेंस डाइट बताई गई है जो कि एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए है, जिसमें प्रॉपर बैलेंस डाइट है। A balanced diet recommended for an 11-year-old child for a day: fats 35 gram, sugar 50 gram, pulses 70 gram, vegetables 150 gram, milk 250 gram, cereals 320 grams. ये एक 11 साल के बच्चे की बैलेंस डाइट है प्रॉपर। राइट कुकिंग. Not just eating the correct food but correctly prepared food is also very important so that the nutrients are not lost. एक करेक्ट फूड ज़रूरी नहीं है बट एक प्रॉपर कुक्ड फूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे की हेल्थ के लिए या फिर किसी की भी हेल्थ के लिए। Some of the minerals, vitamins and proteins are soluble in water. Therefore, we need to follow correct food cooking practices which prevent the loss of water soluble nutrients from the food. कुछ minerals, vitamins या proteins ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए proper cooking techniques यूज़ की जाती है जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। Some of such practices are as follows: washing fruits and vegetables before peeling and cutting, not unnecessarily washing rice and pulses, reducing the amount of water used in cooking, using less oil while cooking, no overheating or overcooking, cooking in closed utensils like pressure cooker instead of open utensils like pan और कढ़ाई। सी इस तरीके की प्रैक्टिसेस से, जैसे कि हम बोल रहे हैं कोई भी न्यूट्रिएंट है या फिर मिनरल है वो सोल्यूबल हो जाता है पानी में, उससे बचने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। आपका जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है कटिंग से पहले ही उसको धो लेना चाहिए। एंड देन ज़्यादा देर तक पल्सेस या राइस को वॉश नहीं करना चाहिए। पानी की मात्रा कम रखनी चाहिए खाने में और ऑयल कम यूज़ करना चाहिए। ओवर हीटिंग या फिर ओवर कुकिंग नहीं करनी चाहिए। ओपन खाना नहीं बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर में बनाना चाहिए। डेफिशिएंसी डिजीजेस. Diseases which occur due to the deficiency of one or more essential nutrients in the diet are called deficiency diseases. खाने में किसी चीज़ की, न्यूट्रिएंट की या फिर किसी भी चीज़ की कमी होने की वजह से बीमारी हो सकती है, उसे हम deficiency diseases कहते हैं। We have learned that a balanced diet has the required quantity of nutrients needed by our body. This does not mean that if we consume less quantity of nutrients for one day, we will have some diseases. But if we do not consume a particular nutrient for a long period of time, it will have deficiency diseases. Okay. अगर हम एक दिन के लिए कोई न्यूट्रिएंट स्किप कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती है। अगर हम एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है। डिजीजेस डेवलप्ड when the deficiency continues over a long period of time. Deficiency diseases are non-communicable and thus cannot be transmitted from one person to another. These can be prevented by eating a balanced diet. Deficiency diseases मतलब अगर आपने कोई न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं किया है तो उसकी वजह से आपको कोई डिजीज़ हो सकती है। ये जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होती, ये सिर्फ इसी वजह से होती है अगर आपने कोई फूड कंज्यूम नहीं किया है, वो भी
बहुत लंबे टाइम तक। ऑन द अदर हैंड, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड्स लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड ओवर ईटिंग एंड इट लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड obesity. Obesity is a condition in which a person tends to gain weight and becomes fat. It leads to heart problems. Okay. ज़्यादा खाना खाने की वजह से आपकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो ख़राब हो सकती हैं, आप वेट गेन कर सकते हैं। ओवर ईटिंग करने की वजह से अगर आप ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो उसे ओबेसिटी बोला जाता है। इसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। Some of the common deficiency diseases, their causes and symptoms are given in the table below. Name of the disease: kwashiorkor, caused by the deficiency of protein. Symptoms: swelling, change in color of skin and hair, increase in size of liver. Okay, kwashiorkor जो है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं स्वेलिंग, आपके बॉडी या फिर हेयर का कलर चेंज होना, या फिर आपके लीवर का साइज बढ़ जाना। नेम ऑफ डिजीजेस: marasmus, caused by the deficiency of proteins and carbohydrates. Symptoms: swelling, wasting of muscles. Okay, मारसमस जो है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होती है। इसके सिम्टम्स है स्वेलिंग या फिर वेस्टिंग ऑफ मसल्स। नेम ऑफ द डिजीजेस: नाइट ब्लाइंडनेस, caused by deficiency of vitamin A. Symptoms: not able to see in dim light. नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। इसका सिम्टम है आप डार्क में देख नहीं पाते हैं। नेम ऑफ द डिजीज: बेरी, caused by the deficiency of vitamin B1. Symptoms: weight loss, weakness, pain in limbs, swelling. बेरी विटामिन बी की कमी से होते हैं। इसके सिम्टम्स है वीकनेस, पेन इन लिम्स एंड वेट लॉस। नेम ऑफ डिजीज: स्कर्वी, caused by deficiency of vitamin C. Symptoms: roughness of skin, gum disease, loosening of teeth, dry mouth, dry eyes. स्कर्वी जो है आपको विटामिन सी की कमी से होती है। इसके सिम्टम्स होते हैं स्किन में रफनेस आ जाती है, मुंह सूखता है, दांत गिरने लगते हैं, आंखें सूखी रहती हैं। नेम ऑफ द डिजीज: रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टेमेलेशिया इन एडल्ट्स, caused by the deficiency of vitamin D. Symptoms: deformity of bones, weakening of bones, muscles weakness. रिकेट्स या फिर ऑस्टेमोलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स हैं वीकनिंग ऑफ बोन्स या फिर मसल्स वीकनेस। नेम ऑफ द डिजीजेस: बोन एंड टीथ डिके, caused by the deficiency of calcium. Symptoms: weakness of bones, loosening of teeth. बोन एंड टूथ डिके कैल्शियम की कमी से होते हैं। इनकी सिम्टम्स है वीकनेस ऑफ बोन या फिर लूजनिंग ऑफ टीथ। नेम ऑफ द डिजीज: एनीमिया, caused by the deficiency of iron. Symptoms: fatigue, weakness, hair loss, fall in appetite. एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं वीकनेस या फिर हेयर लॉस। गोइटर, caused by the deficiency of iodine. Symptoms: swelling of neck glands. गोइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं आपके गले में सूजन आने लगती है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी: ओबेसिटी इज टिपिकली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग अ पर्सन्स बॉडी मास इंडेक्स BMI, which is calculated by dividing their weight into kilograms by the square of their height in meters. Okay, ओबेसिटी क्या है? एक तरीके से हमें पता है हमें मोटापा होता है ओबेसिटी, लेकिन वो मेजर किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स BMI के थ्रू, जो कि कैसे किया जाता है? आपकी हाइट और आपकी वेट जो होता है उसको डिवाइड करके किया जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर: deficiency of water or dehydration is caused due to the excess loss or less intake of water. Dehydration can lead to fainting, dizziness, tiredness and weakness. Okay, deficiency of water मतलब कि आपके शरीर में पानी की कमी होना, उसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। जब आप कम पानी पीते हैं तो उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप चक्कर खा के गिर जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, वीक फील करेंगे, थके थके फील करेंगे। मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। मैल न्यूट्रिशन यानी कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होना, वो तभी होता है जब आपकी बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनटेक नहीं करती। Following are the diseases caused due to the malnutrition. Protein malnutrition, kwashiorkor.
Kwashiorkor occurs in children 1 to 5 years of age if they do not get sufficient amount of mother's milk. Symptoms are stunted growth, large pot-like belly, swollen face, loss of appetite, thin legs and cracked scaly skin. Okay. प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन होता है क्वाशियोरकोर। ये बच्चों में 1 से लेकर 5 की उम्र तक देखा जाता है। इसमें आप देखते हैं जब बच्चों को प्रॉपर मदर मिल्क नहीं मिलता है तब जाके उन्हें ये बीमारी होती है। इसमें बच्चों के पेट जो है वो फूले फूले रहते हैं, लेग्स टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्रैक्ड होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, स्वॉलन फेस रहता है। सेकेंड इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, PEM, मेरेस्मस। The disease is caused by the severe deficiency of carbohydrates, proteins and fats. It affects the children below 5 years of age. Symptoms are lean and thin body with sun-skin eyes, weak muscles, poor mental growth. Okay. मेरिस्मस 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स की कमी से होता है। जिन बच्चों के लीन स्किन होती है, ये सिम्टम्स है, सनस्किन आइज, वीक मसल्स, पुअर मेंटल ग्रोथ, ये इसके सिम्टम्स हैं। अंडर न्यूट्रिशन, Undernutrition is a condition that occurs when the food intake is less than that required by the body. हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जब वो नहीं मिल पाता तो उसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं. It may be caused due to the poverty or non-availability of sufficient food due to the drought or other natural calamities. ऐसा तब होता है अगर आप पुअर हैं, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है बिकॉज आप गरीब हैं, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हैं जिसके थ्रू आपके पास प्रॉपर फूड नहीं आ पा रहा है, इसकी वजह से होता है. अ मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन हैज बीन स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड balanced diet to the poor children suffering from malnutrition or undernutrition. The government of India has started many programs to combat undernutrition in pregnant women and nursing mothers. एक मिड डे मील प्रोग्राम डे खोला गया है हर स्कूल में, उन स्कूल्स में मोस्टली जिन बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता उन्हें फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है. उसी तरीके से जो प्रेग्नेंट विमेन्स हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाती हैं उनके लिए नर्सेज का इंतजाम किया गया है, प्लस food. Obesity. Eating energy rich food in excess cause fat deposition in the body leading to obesity. Obesity in children has become a common problem. The main reason to it is excess intake of junk food such as pizzas, burgers, chips, noodles, cold drinks, ice creams, etc. ज़्यादा खाने की वजह से आपका जो शरीर है उसमें फैट जमा हो जाता है, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं. ये स्पेशली छोटे बच्चों में ज़्यादा देखी जा रही है. ये क्योंकि छोटे बच्चे पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चिप्स, नूडल्स इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. बिसाइड दिस, एब्सेंस ऑफ आउटडोर गेम्स एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंडिंग ऑन द गेम्स ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स और वॉचिंग टेलीविजन आर अदर रीजन फॉर द ओबेसिटी इन चिल्ड्रन. ओके, पहले के दिनों में जो लोग थे वो आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलते थे, लेकिन आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडोर गेम्स को देते हैं, कंप्यूटर गेम्स को देते हैं, वीडियो गेम्स को देते हैं. ये भी एक रीज़न है ओबेसिटी का. Read at a glance. Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the major nutrients in our food, while dietary fibers and water are also required for the body. Carbohydrates and fats provide energy, proteins and minerals which are needed for proper growth of our body. Minerals and vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins and minerals protect our body against diseases and keep us healthy. Fiber does not have any nutritive value, but it helps in the process of digestion and prevents constipation. Water is one of the most basic needs for survival of human beings. Nutrients can be grouped into energy-giving foods, carbohydrates and fats, bodybuilding foods, proteins, and protective foods, vitamins and minerals. A balanced diet should include food items from different sources to fulfill nutrition requirements. Some nutrients are lost when food items are washed with water or overcooked. Not consuming a nutrient for a long time may result in the deficiency of the nutrient. Deficiency disease develop when one or more nutrients are insufficient in the diet over a long period of time. They are non-communicable and can be prevented by eating balanced diet. Excessive intake of food leads to obesity and other health problems. Key terms to know: nutrients, bodybuilding substances present in food, dietary fiber roughage, the fiber which is obtained from plant food and consumed by us, balanced diet, diet that contains necessary amount of all nutrients,
deficiency disease caused by non-consumption of a nutrient for a long period of time, obesity, a condition in which a person tends to gain weight and becomes fat, malnutrition, condition developed due to lack of essential nutrients in the diet. I hope आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे.